मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र और उसमें अपनी चर्चा 9वें अध्याय पर चल रही है और 9वें अध्याय में समिति और गुप्ती इन दो को अपन ने थोड़ा समझने की कोशिश की कि समिति क्या होती है। समिति जीव के समीचीन परिणाम, समिति मतलब क्या, जीव के समीचीन परिणाम, और उसमें धर्म की बात भी की थी कि धर्म क्या होता है, परिचय क्या होता है, चारित्र क्या होता है इत्यादि सारी की सारी बातों पर हमने कल एक ओवरव्यू लिया, बराबर। और उस ओवरव्यू के द्वारा ये बात समझ में आई कि इसीलिए हमें समिति पालन करना चाहिए। फिर ये धर्म की बात भी आई, उस पर भी थोड़ा विचार किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश की। पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट क्या था कि सामान्य प्रकार से हम ऐसा मानते हैं कि लौकिक बात धर्म के एंगल में नहीं करनी चाहिए, बराबर। ये बात पूरी तरह से परसेंट सही है कि लौकिक बातों को धर्म में જે વાતોથી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ ધન વૈભવની વાત કે લૌકિક અનુકૂળતાની વાત આ મળે તો એમાં કઈ વાત 100% સાચી છે કે ના જ કરવું જોઈએ। પણ કાલે જેમ કીધું કે જેવી રીતે નાના છોકરાને અમુક સમય સુધી કોઈ ગિફ્ટના લોભથી આ બધું કરાવવામાં આવે છે, એવી જ રીતે જે લોકોને હજી સાચા ધર્મના વિતરાગી સ્વરૂપની ખબર ના પડતી હોય એવા લોકો માટે આ પ્રકારથી વાત કરીને ધર્મના માર્ગમાં આગળ લઈ જવાની પદ્ધતિ આપણા ત્યાં કહેવામાં આવી છે। ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? તો લૌકિક અનુકૂળતા ધર્મથી મળે છે આ કહેવાની જરૂર નથી, તો પણ એ મળે છે જ એમ સમજી। અને જ્ઞાનીનો દ્રષ્ટિકોણ ક્યારે પણ એ લૌકિક અનુકૂળતાઓ ઉપર હોતો નથી, એ પારમાર્થિક સ્વરૂપમાં તૃપ્ત છે, પારમાર્થિક સ્વરૂપને સમજી ગયો છે, ખ્યાલમાં આવે છે કે? પણ સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે આવી વાત કહેવામાં આવે તો એમાં કઈ બહુ દોષ નથી, સમજાવનારનો પણ દોષ નથી, સમજનારની એટલી જિમ્મેદારી બને कि જેમ ભણતા ભણતા ક્યારે આપણે મોટા થઈ જઈએ છીએ, થઈએ છીએ कि નથી થતા? हैं बोलो, पाठशाला में जब पहले आते थे तब तो हमें गिफ्ट मिलती थी, अब प्रवचन सुनने जाते तो गिफ्ट मिलती है क्या? तो आप ऐसा बोलो वहां जाके ना ना જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અમે ગિફ્ટ મળતી હતી, હવે મોટા થઈ ગયા તો મોટી ગિફ્ટ મળવી જોઈએ, આવું કહો છો? હે ત્યારે શું કહે છે, જ્યારે નાના હતા ત્યારે ગિફ્ટ મળતી હતી અને હવે તમને ગિફ્ટ આપવી જોઈએ। અવાજ આવે છે કે કપાય છે? હે આવે છે ને બરાબર? હા તો શું સર હવે આવે છે, વચ્ચે કપાતો તો। अच्छा वच्चे कपाई थी ने आम तमे लोको फ्रीज थया तो मने लाग्युं कि गड़बड़ घोटालो छे, बराबर। हाँ फरीथी कहूं, ज्यारे नाना हता त्यारे त्यारे शुं थतो तो गिफ्ट मळती थी, हवे मोटा थई गया तो गिफ्ट नथी मळती, तो रडवुं जोईए कि मने गिफ्ट केम नथी आपी? અને એમ રડતા રડતા આવો કે ભાઈ મને ગિફ્ટ કેમ નથી આપી, ગિફ્ટ આપો, ગિફ્ટ આપો, તો એ શું કહેશે? એ એમ કહેશે કે ભાઈ હવે તું ગિફ્ટ આપ લેવાની જગ્યા શું કર, આપવાનો શરૂ કર, શું કર? આપવાનો શરૂ કર। હું તમને એક મારી વાત બતાવું कि હું ઘણા समय સુધી बहुत बहुत टाइम तक बहुत एक जैसे अपन कहे ना कि मैं पॉल्यूशन वगैरह आवाज नहीं आए तो बता देना, है ना, बीच बीच में कट रही है आवाज, है ना, ऐसा लग रहा है? सर कट, आपकी कट हाँ, रही है। एक एक सेकंड तो बोलते जाया करो भाई।
मैं दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था कर दूं। तो बहुत समय तक जब मैं मतलब वहां पढ़ता था और जयपुर में ना सब जगह, तो हर टाइम मुझे पर्यूषण में गिफ्ट मिलती थी। मतलब अप टू फ्रॉम 6 से मिलने लगी थी मुझे पर्यूषण में गिफ्ट वगैरह, बराबर। तो पर्यूषण में गिफ्ट मिलती तो मम्मी की हर साल बहुत एक्सपेक्टेशन होती थी कि अब पर्यूषण आएंगे, बेटा गिफ्ट लेकर आएगा, बेटा को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगी। तो कब तक 12th फर्स्ट ईयर तक, जब तक मैं व्याख्यान करने जाने लगा, तब तक मम्मी बेटा क्या गिफ्ट मिली, क्या गिफ्ट मिली। मैंने मम्मी हमें वो गिफ्ट लेवा वाળો નથી, આપવા વાળો થઈ ગયો છે। બધા गिफ्ट लेता लेता फोटा पड़ावे છે। ખબર પડી કે આ વાત છે કે નહીં? સર બહુ કપાય છે, બધું કપાઈ ગયું છે। બધું કપાઈ ગયું, દાખલો પૂરો થઈ ગયો મારો, તો ફરી કેવું પડશે। લો ક્યાં હતો? બીજી વાર હે પર્યુષણમાં સર પર્યુષણમાં gift gift. પછી. પર્યુષણમાં gift. આજા ચાલો હા હા હા। પર્યુષણમાં જ્યારે હું જતો હતો ત્યારે 10th 11th સુધી, કેમ કે મને 6 થી આમ લગભગ કોઈ ના કોઈ પ્રતિયોગિતામાં गिफ्ट મળતી હતી, મળી જતી હતી એમ કઈ। તો જયપુર ગયો તો ત્યાં પણ મળી 11th 12th। તો ફર્સ્ટ ઈયર માં જ્યારે હું પર્યુષણ કરાવવા ગયો ને, તો પર્યુષણ કરાવવા ગયો ત્યારે મમ્મી મને પૂછે કે બેટા શું गिफ्ट મળી? ત્યારે મેં કીધું કે મમ્મી અત્યારે હું गिफ्ट આપનારો નથી, લેનારો નથી, આપનારો થઈ ગયો છું। બધા મારાથી गिफ्ट લઈને ફોટા પડાવે છે। અરે અચ્છા ઠીક છે। સમજાય કે નહીં? હા હા। એટલે કહેવાનો મતલબ તમે સમજો શું કહેવા માંગુ છું? કહેવાનો મતલબ ટૂંકું ટચટકું છે કે જેવી રીતે સંસારમાં આપણે મેચ્યોર થઈ ગયા, એમ ધર્મના માર્ગમાં પણ મેચ્યોર થઈ જાય। જરૂરત એ નથી તમે गिफ्ट બદલો, જરૂરત એ છે કે તમે गिफ्टની દ્રષ્ટિ બદલો। અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? गिफ्ट નથી બદલતા, गिफ्ट બદલીએ છીએ। નાના હતા તો નાની નાની વસ્તુઓની ધર્મ સાથે ડિમાન્ડ કરતા હતા, અને મોટા થઈ ગયા તો મોટી મોટી વસ્તુઓની ડિમાન્ડ કરવા લાગ્યા। બોલો, નાના હતા ત્યારે નાની કાર, નાનું ઘર આવું છે, અને મોટા થઈ ગયા તો મોટી મોટી કાર, મોટો મોટો ઘર, મોટા મોટા સુખ સામગ્રીઓની વાત કરવા લાગ્યા। તો વસ્તુ એ છે કે ધર્મ કરતા કરતા આપણે ધર્મની દ્રષ્ટિ થવી જોઈએ, અને ધર્મની દ્રષ્ટિ કરવા માટે કદાચ લૌકિક વસ્તુઓની વાત કરવામાં આવે, પણ ધ્યાન રાખજો આ એવું જ છે જેવું નાના પાઠશાલાના છોકરાઓને गिफ्ट આપી આપીને આપણે પાઠશાલા ભણાવીએ છીએ, પણ અમુક ટાઈમ પછી એમને ત્યાંથી મુક્ત કરી જ દઈએ છીએ। કરનારને પણ કરી દેવું જોઈએ અને લેનારને પણ મુક્ત થઈ જવું જોઈએ। હા બોલો દિનેશભાઈ। હા, લાલચ જ આપી આપીને અમને તો ઊંચા કરાવે છે ને, છોડતા નથી લાલચ કોઈ જગ્યાએ। આપીને રસ્તા ઉપર લઈ શકાય, પણ આગળ વધવા માટે લાલચ છોડવું પડે એમ। બંનેનું સાયન્સ સમજવાનું, મનોવિજ્ઞાન સમજો કે જેને જે વસ્તુની કદર છે એ વસ્તુથી એને આગળ લેવામાં આવે છે। પછી પછી જ્યારે એને એક બાર ખબર પડી જાય કે ભાઈ આના કરતા પણ અનંત ગણું સુખ આત્મામાં છે, તો પછી આના પાછળ कोई કેમ પડે? समझा कि नहीं समझा? बस इतनी सी बात को यहाँ पे समझना है कि लौकिक वस्तुओं की जैसे ही आपको लगे कि भाई थोड़े थोड़े करने की जरूरत आई तो आई, कहने भी पड़ा क्योंकि किसी को पता नहीं। अरे समोसरण खुद एक लालच। मुझे बताओ, मैं बहुत सिंपल बात, समोसरण लालच, समोसरण लालच है मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भैया भगवान को उपदेश देना था तो पेड़ के नीचे भी दे सकते थे, समोसरण क्यों बनाया? शिविरों में अच्छा भोजन, अच्छी आवास की व्यवस्था ये क्यों दी जाती? एक प्रकार का लालच है, क्योंकि आप एक भी शिविर में अच्छे भोजन और आवास के बिना बुला के बता दो लोगों को। पॉइंट समझ में है? और देखो ये चीजें चलती रहती, ऐसी नहीं कि ये चीजें गलत है, ये चीजें चलती रहती हूँ और समय समय पर आचार्य भी इनका उपदेश करते रहते। मुद्दा केवल वहां अटकाने का है,
वहां से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं। हमें कंठपाठ भी लालच दे दे के कराया गया, आपको पता है। अन्ना जी थे हमारे प्रिय यशपाल जी, 6 डाला सुनाओगे बेटा 100 रुपए मिलेंगे, तत्वार सूत्र सुनाओगे 150 रुपए मिलेंगे, समय सार सुनाओगे 500 रुपए मिलेंगे। और मैंने खूब सुनाया 24 ग्रंथ कंठस्थ करके समाज के बीच में सुनाए। उस समय भले ही वो कंठपाठ था, लालच भी था, सब बातें थी, लेकिन अब वो निधि अपने अंदर है कि नहीं। उस समय मैंने 2004 में करीबन 24 ग्रंथ ऐसे नंबर से सुनाए थे शिविर में, अगस्त के शिविर में। 24 ग्रंथ की सब किताबें बांट दी। 6 डाला, तीसरी डाल, चौथा छंद, तत्वार सूत्र, 5वां अध्याय, 17वां सूत्र, द्रव्य संग्रह, 15वें नंबर का श्लोक, समय साहब 34वें नंबर की गाथा। ऐसे करते करते करीबन 24 ग्रंथ, पूरे 700, 1000, 1500 लोगों की भीड़ थी। सबको ओपन, जिसको जो पूछना है सब पूछो। ऐसा करके वो किया था। और अच्छा, अन्ना जी की तरफ से प्राइज भी अच्छा मिला था, 5-7 हजार। फिर लोगों की बहुत, मतलब अलग ही उसका वो चार्म हो गया था। उस समय की बात है, मैन ऑफ द शिविर बन के अच्छा लग रहा था। जहां देखो खाना खाने जाओ तो 2-4 लोग पीछे लग जाएं, वो अच्छा लग रहा था। वो उस समय का लालच था, लेकिन उस लालच से ही सही आज वो निधि अंकद अंदर हो गई। अब जैसे विवेक जागृत हुआ, बुद्धि परिष्कृत हुई, समझ विकसित हुई, तो उस प्रलोभन से भी किया हुआ धर्म आज काम में आ रहा है। सच बात। यही बात है। सही अर्थ में अगर आप समझेंगे तो खुद ब खुद जैसे मेहंदी रचने के बाद अपने आप छूट जाती है अपना रंग देकर, वैसे ही जिनवाणी में कदाचित धर्म के माध्यम से अगर आपको बाहर का रंग भी लगा हो तो थोड़े सा टाइम बाद वो अपने अंदर का रंग लगा के छूटे ही जाता है। जड़ पुण्य का रंग ये काली मेहंदी का रंग है, और आत्मा का रंग ये मेहंदी का लाल रंग। हमने वो वाली हाथ वाली मेहंदी कह रहा, बालों वाली नहीं कह रहा, वो तो विचित्र चित्र होती है। लेकिन वो काली वाली मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं ना, वो कैसी होती है, पहले काला काला, वो बाहर से लगाई जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो छूट जाती है। ऐसे ही है, ये तो धर्म की बाहरी व्याख्याएं दी हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये उस मेहंदी के काले रंग की बात जो लगा दिया है। शुरुआत में जरूरत भी रहती है, लेकिन बाद में जैसे ही उसका रस इसमें आ जाता है हथेली में, आप बताओ, मेहंदी को आप छुड़ाने की उतावलपन करते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी करो तो भी वो अजर अमर रहेगी कि छूटेगी ही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको भले ही हम उतावलपन करें कि नहीं छोड़ दें, धो दें, निकाल दें, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे, मेहंदी को मेहंदी रूप में ही रहने दोगे, तो जब तक उसका रंग उस हथेली पर नहीं जाता है तब तक वो टिकी रहेगी। और जैसे ही वो रंग हथेली पर जाता है तो कालापन छूट जाएगा। वैसे ही ये जो बाहर का रंग है वो अगर आपके अंदर तक नहीं जुड़ा तब तक वो बाहर रहेगा, और जैसे ही वो अंदर आत्मा में चला गया तो बाहर का रंग चला गया। तो कहने की बात ये है कि बाहर का रस कम हो, इसके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। आगे आगे देखते हैं उसमें क्या है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से क्या लाभ। अनुप्रेक्षा जो 12 भावना है उनका चिंतन करने से क्या लाभ है, तो बताते हैं कि भव्य जीवों को हित करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई। अनुप्रेक्षाएं कैसे हैं? बोले अनुप्रेक्षा 2 कारण से बोली। कौन कौन से? भव्य जीवों का वैराग्य बढ़े। क्या बढ़े? भव्य जीवों का वैराग्य बढ़े, हित बढ़े। जगत में कहते हैं ना, एक माहौल बनाना होता है कि नहीं होता? माहौल बनाना मतलब जैसे अभी इंडिया में आईपीएल का माहौल बना, अरे गुजरात में फाइनल हो रहा, अहमदाबाद में फाइनल हो रहा, ऑफिस में देखो तो आईपीएल की चर्चा, टीवी पर देखो तो आईपीएल की चर्चा, ज्ञानवापी की चर्चा। ये क्या हो जाती है? इससे माहौल बन जाता है।
माहौल बनता तो जाति के भाव आने लगते। अगर आपके ऑफिस में 10 लोग हैं और 8 लोग शेयर बाजार की बातें करते रहे तो बाकी 2 का क्या होगा? वो भी कहेगा यार कहीं हो तो क्या जो आपने पर कर दी। माहौल बनी जाए, बराबर समझेंगे। ये भी चीज है। आपको अगर माहौल बनाना है तो क्यों ना ज्ञान और वैराग्य का माहौल बनाया जाए। कितना अच्छा हो हर आदमी आपसे मिले और संसार शरीर की भोगों की नश्वरता के बारे में बात करे। कल्पना करके देखो उस दिव्य लोक के बारे में जहां संसार की तरफ बढ़ाने के लिए कोई उत्साही नहीं है। हर एक व्यक्ति आपसे विरक्तता और वैराग्य की बात करे। आप सोच के देखो, आपके आजू बाजू 100-200 लोग हैं, कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा कि दुकान पे जाओ ना, पैसे कमाओ ना, घूमने फिरने जाओ ना, ये करो ना वो करो। हर एक आदमी ये बोल रहा है बता भगवान से, बता भगवान। कैसा होगा परिणामों का ऊर्ध्वगम। सोनगढ़ वगैरह में जब लोग जाते थे तो सोनगढ़ वगैरह में जाने वाले लोगों की खूबी यही थी कि 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक रहकर क्या होता था। स्वाध्याय भवन की सीढ़ियों पर बैठा है, आत्मा की चर्चा कर रहा है। भोजनालय में जा रहा है तो भी निमित्त उपादान की चर्चा कर रहा है कि शरीर खाता नहीं है, शरीर खाता है, आत्मा तो निमित्त है, बराबर आत्मा जान। ऐसी बातें होती बराबर। मुझे याद है जो लोग सोनगढ़ गए हैं वो कई बार ऐसे कहते थे कि मतलब क्या माहौल रहता था, आज के जैसा नहीं होता था। गुरुदेव के टाइम पर खा पी के जैसे और कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी। वहीं स्वाध्याय भवन में बिस्तर वगैरह पड़े रहते थे, वहीं लेट जाते थे, थोड़ा बहुत उठ जा। अब पता है ऐसे खा पी के लेटे ना आराम करने के लिए तो दूसरे आदमी जगह जगह कर बोलते या खाने के लिए आए हो क्या है। और फिर क्या करते, जितने लोग हैं ना वो 2-4 गद्दे इकट्ठा कर लेते, उनमें एक आध आदमी बैठ जाता और फिर वो चर्चा करता है आज गुरुदेव ने क्या बोला, समय सार में क्या लिखा। ऐसे होता था। मतलब मैं तो खुद जब सुनता हूँ लोगों से तो कितनी तालावेली उन लोगों को अंदर में होगी आत्मा, तब जाके वो ये सब बातें हो पाती। हाँ बोले दिनेश। मुझे याद है एक बार प्रज्ञाचिनी की बात चली थी, वो हाँ पेड़ के बाजू बाजू में सब लोग हाँ प्रज्ञाचिनी का वो टाइम आया था साहब का, हाँ गुरुदेव का, तो प्रज्ञाचिनी के ऊपर बाहर सब लोग डिस्कस करते रहते थे। हाँ। वो याद ऐसे है अभी भी मुझे। हमेशा ही होता था। मतलब वो माहौल जिन्होंने जिया है वो लोग जब बताते तो आज भी याद करके उनकी आंखें चमकती। इस जीवन को उन्होंने जिया है, ये बनता है। आजकल वो बात नहीं रही। स्वाध्याय में भी वो क्या गहनता, अन्वेषण की वृत्ति, समर्पण की वृत्ति वो कम हो गई। इसलिए चिंतन ज्यादा नहीं हो पाता, बातें ज्यादा नहीं होती। बस ठीक है, लोग आते हैं शिविरों में सुनते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं, फिर दूसरा सुनते तो तीसरा भूल जाते, ऐसे करते करते चलता है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो जब आपको कोई चिंता कर चर्चा करने वाला ना मिले तो आचार्य कहते डोंट वरी, कार्य भावना है ना। कोई मिले तो वेल एंड गुड, उसके साथ चर्चा करो। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसे पाप का विचार करो? बोले नहीं भाई, पाप का विचार करने का टाइम किसके पास है। हम तो चर्चा करेंगे तो 12 भावनाओं की चर्चा करेंगे। तो 12 भावनाओं का विचार करे, चिंतन करे, क्या होगा? बोले अंतर में वैराग्य का माहौल बनता है। किसका माहौल बनेगा? वैराग्य का माहौल बनेगा। अंतर में वो बात आएगी कि ओ हो ऐसे होता है वैराग्य, ऐसे बढ़ता है ज्ञान, ऐसे बढ़ता है। बराबर समझ में आया? तो भव्य जीवों को, अच्छा भव्य शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि भव्य वगैरह आऊ भाव बधाने आवे नहीं। સંસારમાં સાર છે, આ ભાવ બધાને જ આવી શકે, પણ સંસાર અસાર છે ને આત્મા ઉપાધિ છે એ માત્ર ભવ્ય ને જ આવે। જો ભાઈ પૂજા પાઠ અભવ્ય પણ કરી લે પણ એને નશ્વરતા નહીં ખ્યાલમાં આવે। નશ્વરતા તો કોને ખ્યાલમાં આવશે? કે જે આત્માને સારભૂત ગણે એને જ આવશે, ભવ્ય ને જ ખ્યાલમાં આવશે એમ કહેવામાં આવે છે। બરાબર ખ્યાલમાં આવી કે નહીં એ વાત? સમજ્યા ને? તો એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો।
તો બારે ભાવના એટલે શું? બોલે બારે ભાવના એટલે અંદરમાં ભવ્યતાની પોકાર, અંદરમાં વૈરાગ્યનો રણકાર, અંદરમાં જ્ઞાનનો ધોધ, જેના ચિંતન કરવાથી તમારા અંદરમાં વૈરાગ્ય વધે, જ્ઞાન વધે, ભવ્યતા તમારી ખીલે, આવી પરમહિત કારણી એ બારે ભાવનાઓ છે. આ 12 પ્રકારના વિચાર કરવામાં જો તમે એક્સપર્ટ થઈ ગયા તો આખા જગતને તમે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવા લાગશો અને બધી બાજુ તમને લાભ જ લાભ થશે. ઠીક છે? પાકું? હા, બહુ સરસ. है ना? तो બધા લોકો બારે ભાવનાનું ચિંતન કરશે કે નહીં? બારે ભાવના ચિંતન કરવાથી નુકસાન શું છે? કોઈ નુકસાન નથી. પાકું? લોક કર દઉં. એટલે નુકસાન નથી તો હવે રોજ કરશો ને. નુકસાન હોય તો અત્યારે કહી દો, ક્લિયર કરી દો. ના ના નુકસાન છે માટે. એટલે કઈ નુકસાન નથી ને? પાકું ને? તો પછી હવે ચિંતન પાકું કે કાચું? ચિંતન કરજો, હંમેશા કરજો. પાકું પાકું. બારે ભાવનાનું ચિંતન ફરજિયાત છે દરેકને. હું તો જ્યારે પણ ભણાવું છું ત્યારે કહું છું કે એટલીસ્ટ નિયમ લેવું જોઈએ 10 મિનિટ 15 मिनट. આમાં કોઈ રિપીટેશન નથી. कोई ये मत सोचना कि कल ही तो पढ़ी थी आज क्यों पढ़े. रोज पढ़ो, दिन में 10 दफे पढ़ो तो भी कोई बुराई नहीं है. जब जब भी विचार करोगे तब तब आपके अंदर के विकार कम. समझ में आया? इसीलिए अनुपेक्षाओं का बाहर निकल. आगे देखो. परीक्षाओं को जीतने से क्या लाभ? देखो पढ़ो जरा इसको. क्या लाभ है? तीनों के चारों लाभ. कौन पढ़ेगा? हाँ प्रज्ञा बेन. चलो प्रज्ञा बेन. સ્લીપ હોઈ ગઈ. है? પેલું તમારું સૂત્ર જતું રહ્યું. સૂત્ર ક્યાં? अरे आवशे आवशे, चिंता ना करो તમે. हाँ तो पढ़ो. આ થોડું મોંઘેરો મહેમાન છે તમારો, બોલાવો એને. બોલે સૂત્ર પધારો. બોલો. હા બોલું તમે સૂત્ર. અરે બોલો તો સૂત્ર પધારો ત્યારે પધારશે. આ સૂત્ર બોલું ત્યારે. હા લો હવે લો પધારી ગયો એમ. આવું મનાવવું પડે, મોંઘેરો મહેમાન છે અમારો. બોલો બોલો. अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज कर्मों से घोर युद्ध में चारित्र रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी बाण चढ़ाकर परिसर रूपी महायोद्धाओं को जीत लेते हैं. उनके समस्त એક પોઈન્ટ કરી. બહુ સરસ સરસ એમાં વિશેષણ છે. ભેગા ભેગા કરવા જઈશું તો ભૂલી જઈશું. જો કેવા સરસ ઉપમાઓ આપી છે कि अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज શું કરે છે? કર્મો સે ઘોર યુદ્ધ. જો ભાઈ 3rd વર્લ્ડ વોર ચાલે છે તો બહારની વાત છે, ચાલે કે નહીં ચાલે વોટેવર, પણ એક તો છે જે અંતરમાં સતત ચાલે છે જ્ઞાનીના અંતરમાં. કર્મ સામે પોતાની પ્રભુતા પ્રગટ કરવાનો આત્મિક યુદ્ધ. બરાબર. હવે એ યુદ્ધમાં તમારા અમારા બધાના સાધન કયા કયા છે? બરાબર. તો થોડુંક વિચાર કરવા જઈએ તો કહે છે કે ચારિત્રમાં દ્રઢ રહેનારા મુનિરાજ ચારિત્ર રૂપી ધનુષ પર, આજની ભાષામાં કહીએ તો ચારિત્ર રૂપી ગનમાં, પછી શ્રેષ્ઠ તપરૂપી બાણ એટલે તપરૂપી બુલેટ લોડ કરીને શું કરે? પરિચય રૂપી મહાયોદ્ધાઓને જીતી લે છે. એ ચારિત્ર ને તપ વડે क्षुधा तृषा आदि जे छे ए एवा महायोद्धाओने पण जीती ले छे. खबर पड़े छे? आ तो स्पष्ट वस्तु छे कि 22 परिश्रम में जो भी चीजें हैं वो सब रूटीन की हैं, एक्स्ट्रा नहीं है. एक्स्ट्रा और रूटीन का समझे ना. जैसे बहुत ज्यादा मकान होना वो एक्स्ट्रा की बात है, बराबर. लेकिन यहाँ पे कह रहे बहुत मकान की बात नहीं कर रहे, रूटीन कि आप जिस सैया पे रहे उसकी चिंता, जमीन में सोना, नंगे पैर चलना, बहुत 56 प्रकार के भोजन करना वो तो अलग बात है. लेकिन अगर भोजन मात्र को जीतना
मीठा सुगंधित पेय पीना वो अलग बात है, पानी मात्र की इच्छा को जीतना, यानी परीक्षणों में जो जो भी टारगेट किया जाता है वो अनिवार्य जैसा है, जो हमारे जीवन में हमेशा बनता है। धन्य है वो मुनिराज, वास्तव में बहुत आनंद आता है। धन्य है वो मुनिराज, जो मुनिराज ऐसी अनिवार्य वस्तुओं को, जिनको हम कभी सोच भी नहीं पाते, आत्म के बल से खेलते खेलते छोड़। विचार करके देखो, हमने होटल का खाना छोड़ दिया, अभक्ष खाना छोड़ दिया, लेकिन हमारी गाड़ी अटक जाएगी ना, मर्यादित खाना तो चाहिए ना, ऐसे कहेंगे। अनछना पानी छोड़ दिया, कच्चा पानी छोड़ दिया, पर पीने को पानी तो चाहिए ना। बोलो, बहुत ज्यादा सुखमय सैया पर नहीं सोएंगे, लेकिन सोने को तो चाहिए ना। मुनिराज ने क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, गर्मी, सर्दी सबको जीत लिया। कुल मिला के वो अब आत्म कल्याण के ऐसे अजय योद्धा बन गए हैं कि कोई भी चीज उनको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाती। समझे कि नहीं समझ? बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। अगर आप सोचो, कर्म अगर, मैं बार बार कल भी मैंने बात बोली थी, आज पुनः बोलता हूं कि कर्म अगर आपको हैरान करना चाहे तो कैसे करेंगे? आप प्रैक्टिकली सोचो। आत्मा का डायरेक्ट तो कोई कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो सोचेंगे चलो हम तुम्हें हैरान करें, तो कैसे करेंगे? वो कर्म कभी भूख के रूप में आएंगे, कभी प्यास के रूप में आएंगे, कभी ऐसे आ जाएंगे कोई आपको गाली देकर चला जाए, कभी आपको मच्छर काटने के रूप में आएंगे, बराबर, कभी कोई आपके अपमान के रूप में आएंगे, हैं? इसी रूप में तो आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे आएंगे कर्म को? और मुनिराज कहते हैं कि जैसे तुम उदय में आओगे उसकी प्रिपरेशन हम पहले ही करके बैठे। आपको पता है ना, ये जब ओरिजिनल युद्ध के पहले वो क्या कहते हैं, सैन्य अभ्यास होता है, उसे क्या बोलते हैं, मिलिट्री नहीं होते, वो आपस में खेल करते हैं, सैन्य अभ्यास प्रैक्टिस के रूप में क्या करते हैं वो, सैन्य अभ्यास। आर्मी की वो अलग अलग जो परिस्थिति युद्ध में बनती है, वो सारी की सारी परिस्थिति क्या करती है, वो ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन, बराबर ना, ऐसे वो करते हैं। क्यों करवाते हैं? कि जो पराधीनता में पर में आएंगे, हम पहले से उसके प्रिपेयर हैं, और पहले से प्रिपेयर हो गए तो फिर तुम्हारा शत्रु शत्रु के रूप में जो आएगा, स्वेच्छा से शत्रु को समझ लिया और जीत लिया, तो फिर शत्रु क्या कर पाए? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन क्यों होते हैं? कि युद्ध भूमि में जो जो प्रोबेबल समस्याएं हैं, जो हो सकता है, उसको पहले ही समझ जाए और पहले ऐसी तैयारी करे कि बाद में युद्ध भूमि में उसे कुछ और लगे ही नहीं। अच्छा तरीका है कि नहीं तरीका? अरे सिंपल कहो ना, बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट देते, इंटरव्यू के पहले मॉक इंटरव्यू देते, ये क्यों देते? क्या कारण? कि आप उस चीज को स्वेच्छा से ऐसे हैबिचुअल कर लो कि बाद में उदय के रूप में आए तो आपको कोई और लगे ही नहीं। अगर आपने अभ्यास नहीं किया हो तो क्या होगा कि एकदम सामने आ जाएगा तो घबरा जाओगे, अब क्या करें, अब क्या करें। हम लोग जब आईएएस की प्रिपरेशन करते थे तो जो इंटरव्यू जिनका होता तो इंटरव्यू देने के पहले 10 दफे इंटरव्यू देते थे, मॉक इंटरव्यू। मैं उसका इंटरव्यू लेने वाला बन जाऊंगा, वो 2-4 मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर मेरा टर्न आएगा तो मैं एग्जाम देने वाला इंटरव्यू देने वाला बन जाऊंगा, दूसरा मित्र इंटरव्यू लेने वाला बन जाए। क्यों? कि जो परिस्थिति आने वाली है हम पहले से उसके लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो। एग्री? यही परिषद है। बार बार इस बात को समझो कि पुराना संचित कर्म अगर उदय में आएगा तो किस रूप में आएगा? मुनिराज के पास पैसा तो है नहीं जो बैंक में लॉस हो जाए, शरीर के प्रति राग तो है नहीं कि जो उसके, तो अगर कर्म का उदय आएगा तो कौन से रास्ते से आए? गिनी चुनी चीजें बसती हैं, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर, मक्खी, है ना, वो सब मुनिराज बड़ी गहराई से देखते हैं, विचारते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई उनके नग्न रूप की क्या कहते हैं बुराई करे, तो कहते ये भी बन सकता है, तुम अभी से अभ्यास कर लो, बराबर। तो ये ऐसा भी हो सकता है मोह को दे उल्टा पुल्टा विचारने लगो, तो क्या अदर्शन नाम का परिचय जय करो। ये सब बातें वहां पे की जाती।
तो इस सबके पीछे मनोविज्ञान कितना है कि कर्म का जो इफेक्ट है, वी आर रेडी टू फेस इट. અમે લોકો એને સહન કરવા માટે જાતે જ તૈયાર છીએ. અને જાતે તૈયાર છીએ એનો મતલબ શું કે જ્યારે પ્રેક્ટિસ અમારી થઈ ગઈ તો કર્મનો ઉદય નલ એન્ડ વાઇટ. કર્મનો ઉદય ભારે લાગે તો વિચલિત થાઉં ને. વિચાર કરો, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આ નાના છોકરા હોય, આપણા નાના છોકરા બરાબર, એ ગુસ્સામાં આવીને તમને મારે, ઘણી વખત આમ કરે તેમ કરે, તમે શું ગભરાઈ જાઓ, બી જાઓ? અરે હું ભારે છું, બાપ છું, શું કરી લેશે મારું? લગાઈ ને, બાપ છું એનો શું કરી લેશે મારું? અને કોઈ બીજો હટ્ટો કટ્ટો માણસ આવે તો તમને કદાચ ભય પણ લાગે. બરાબર. હવે મુનિરાજ એમ જ કહે છે, ભૂખના રૂપે કર્મનો ઉદય આવે, મુનિરાજ કે બાપ છું તારો રહેવા દે. આત્મા પરમ પિતા મારી પાસે છે, હવે આ કર્મનો ઉદય મને કઈ નડવાનું. પ્યાસ આવે, શરદી આવે, ગરમી, બધાનો બોસ અંદરમાં બેસેલો છે, ભગવાન આત્મા, એનો બલ મારી પાસે છે. પછી એનું બલ આવે ને તો બધા કાલે કર્મ નો ઉદય નલ એન્ડ વાઇટ થઈ જાય. પછી આકુલતા નહીં થાય, દ્વેષ નહીં થાય, કોઈ પ્રકારના મનોવિકાર નહીં થાય, અને આ નહીં થાય તો જીવ બંધાય. એટલા માટે હું તમને બધાને જ કહું છું, ગમે તેવી સગવડ કરવાની તાકાત તમારી પાસે હોય તો પણ તમને કે અમને થોડીક પ્રતિકૂળતામાં રહેવાની ટેવ જાતે જ પાડવી જોઈએ. છોકરાઓ માટે પણ મારા ખાસ સજેશન છે કે જે તમારા ઘરમાં તમે ગમે તેટલી સુખ સુવિધાઓ આપી શકતા હો, કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી, તમે આપી શકતા હશો. છોકરાઓ માટે તમે બહુ જ સુવિધાઓ આપી શકતા હો, એના માટે તમે પ્રાઇવેટ ચલાવી શકતા હો. હવે આવ્યો કે નહીં આવ્યો? હજી ગયો? આવ્યો અવાજ? તો એના માટે તમે પ્રાઇવેટ પ્લેન ચલાવી શકતા હો તો પણ એને પબ્લિક વ્હીકલમાં જવાની ટેવ પાડો. એના માટે તમે 56 ભોગ લગાડી શકતા હો પણ તો એક દિવસ ચાયના થેપલા એને ખવડાવો, બહુ થયા ચાય થેપલા ખાઈ, નહીં મળે બીજું. બધી પ્રકારની તમે એને સુખ સુવિધાઓ આપી શકતા હો તો પણ તમને શું કરવું જોઈએ? થોડાક સમય માટે એને થોડીક પ્રતિકૂળતા માટે ટેવ પડે એવો જીવન આપો. કેમ? એના ચરિત્રનો વિકાસ એટલા. બરાબર. મુનિરાજ એ જ રીતે પોતાના ચરિત્રને વિકસિત કરે છે. ઠીક છે ને? તો ખ્યાલમાં આવે છે શું કરે છે? આવી રીતે कि तप रूपी बाण चलाकर परिचय रूपी महायोद्धाओं को जीत लेते हैं. आगे पढ़ो प्रज्ञाबेन. प्रज्ञाबेन खोवाई गया? प्रज्ञाबेन हाजिर हो? સૂત્ર જતું રહ્યું. હા હા, પછી કેવું પડે તમને? સૂત્ર પધારો. હા, સૂત્ર પધારો. પધારે કહો છો? हाँ हाँ, हाँ, उनके समस्त कर्म पांचों इंद्रिय रूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी के साथ साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो जाती है. बहुत बढ़िया. હવે એવા સાધુઓને પરિચય જૈન કરવાથી શું થાય કે 5 ઇન્દ્રિય રૂપી ચોરો કે સાથ બધા જ કર્મો, જો એમના આમ કહેવાય ને લોટના ભાવમાં કર્મ ખરે છે. મુનિરાજોના કર્મ લોટ જથ્થાબંધ ખરે છે. કેમ કે જે પણ જાતના કર્મો છે એવો જીવન શૈલી પસંદ કરે, સતત કર્મ કરતા જાય. સઘન ચર્યાનું પાલન કરે અને એ ચર્યાના માધ્યમથી જેટલા અશુભ કર્મો છે એ ઉદયમાં આવીને કરતા જાય. એટલે મુનિરાજ સાચા અર્થમાં કમાણી કરી રહ્યા છે. શેની? જ્ઞાનની ને વૈરાગ્ય. अपन लोग तो कर्मों की कमाई कर रहे हैं और मुनिराज कर्मों की धुलाई कर. इतना अंतर कोई.
बराबर। मुनिराज क्या कर रहे हैं? कर्मों की धुलाई कर रहे हैं, हम कर्मों की कमाई कर रहे हैं। और बहुत ऐसी, अगर कर्म के उदय आके खिरेंगे तो मुनिराज जो जीवन शैली में है वहां पे बहुत खिरते जाएंगे उनको, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, ना पांच इंद्रिय के विषय, ना परिग्रह, ना भोग, ना पाप, कुछ नहीं है। इसलिए सारे कर्म खिर के नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही उन्हें क्या होता है? मोक्ष लक्ष्मी के साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये बात यहाँ पर आती, ठीक है। तो फिर लक्ष्मी की बात आ गई। लक्ष्मी की बात क्यों आई? अरे तीनों लोगों की लक्ष्मी यानी दुनिया भर का पैसा भगवान अपने पास नहीं रख लेते। लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती मतलब तीन लोक में श्रेष्ठ पद जो निज पद है, चैतन्य पद है, वो उन्हें सहज मिल जाता है। वो उसे यहाँ कहते हैं तीन लोक की लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती। ठीक है ना। चलो, इसीलिए परिचय आदि सहन करना। अपन लोग तो परिचय सहन नहीं कर सकते ना, है? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम महावीर के अनुयायी हैं कि महावीर के अनुयायी नहीं? महावीर के नाम में जो महापना जुड़ा हुआ है, वो महापना भोगों के ग्रहण में है कि भोगों के त्याग में? नहीं तो वो तो जो लोग व्यंग करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा क्या अच्छा व्यंग करते हैं। मेरा एक मित्र कई बार कहता है, बोले कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे भगवान ने सब अपने पास रख लिया, इसलिए हमारा पैसा भी उनके पास पहुंच गया, और तुम्हारे भगवान ने अपना पैसा भी तुमको दे दिया, इसलिए सारे बनिए पैसे वाले हो। सही कि नहीं? વાણીએ કેમ પૈસા વાળા? કેમ કે આપણા ભગવાન બધું આપીને ગયા અને એ લોકોના ભગવાન બધું લઈને ગયા, એટલા માટે લોકોને એમ લાગે અમે ઓછા પૈસા વાળા અને વાણીએ લોકો પાસે વધારે પૈસા કેમ હોય? કેમ કે એ પોતાનો પણ એમને આપીને ગયા। સાચું કે ખોટું? भाई समझो। क्या कहें कि हम महावीर के अनुयायी हैं। हमारा महापना वस्तुओं के ग्रहण में नहीं, हमारा महापना वस्तुओं और भोगों के प्रति आसक्ति को छोड़ने। इसीलिए इसीलिए जैनों में जो भी परिचय आदि की बात है, ये सबको बड़ी करामाती लगती। कई बार अपना गौरव है इस बात का। आप किसी अजैन के बीच में जाओ, अन्य मत वालों के बीच में जाओ, बराबर, वो और कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन इस बात को जरूर बोलोगे जैन लोगों के जैसा कोई नहीं। जो तप वो करते हैं, जो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनको बहुत महिमा आती। वो स्वयं नहीं कर पाते, इस बात को उन्हें खेद होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं बीएड करता था तो हम लोग 4 लोग ही अकेले जैन थे, बाकी सब नॉन जैन थे। 4 लोग दिन में खाने वाले, 4 लोग आलू प्याज, मतलब जो भी अपने जैन का आचार वो पालन करने वाले। मतलब मैं देखता था कि 96 लोग इतने ज्यादा प्रसन्न रहते थे। 100 स्टूडेंट थे मेरी क्लास, और सारे टीचर, अरे पहले इन जैन को खिला दो, ये जैनों का टाइम हो जाएगा, खाएंगे नहीं। बीच में क्लास चल रही हो, जैनी बच्चे आ जाओ खाना खा लो। 5 से 7 क्लास चल रही हो और टीचर भी अलाउड करते, और बड़े आराम से अपन प्रेसिडेंट के जैसे उठ के जाते, बराबर और खाना खा पी के आ जाते। मतलब बड़ा। और जब मेरा फर्स्ट प्राइज लगा उसमें आशु भाषण प्रतियोगिता में, तो एक तो मेरा मित्र कहता, बोले कि जैन साहब ये मानो या ना मानो, ये आपके तप का फल है। तप? मैंने कौन सा तप किया? अरे आप रात को नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, ये नहीं खाते, बोले इतना तप करते हो? मैंने कहा अरे तो मतलब आपको तप का कुछ पता ही नहीं, आपको तप का पता ही नहीं है। ये तो जो हम कर रहे हैं वो सबसे नीची में नीची क्रिया है। सच बताऊं, वास्तव में अपन जो भी कर रहे हैं वो मांड मांड प्राइमरी लेवल का मांड मांड हो रहा है, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। धन्य है वो जैन धर्म जहां का प्राथमिक स्तर ही इतना उच्च है, तो उच्च स्तर कितना उच्च हो। प्राथमिक स्तर का आप काम करो तो आप जगत में अजूबे लगने लगते हैं। तो उच्च स्तर का करोगे तो जगत की नायाब विभूति बन जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? पॉइंट समझ आएगी। इसीलिए ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। जरूरी इसके लिए है
क्योंकि ये आपको याद कराती रहती हैं कि आपको और हमको और सबको अपनी आत्मा का कल्याण करना। इसीलिए थोड़ी थोड़ी इनकी आदत डालो। सर्दी को भी सहन करो, थोड़ी गर्मी को भी सहन करो, भूख प्यास को सहन करो, सबको करो। सुविधा मिलती हो तो भी महानता के लिए नहीं, अभ्यास। इसके लिए अभ्यास। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। चारित्र धारण करने से क्या लाभ? पढ़ो प्रज्ञा बेन। सूत्र पधार चुका है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। जो पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चंद्रमा के समान निर्मल, ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं, उन चरम शरीरों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो चतुर इतना इतना मुनि पढ़ लेते, इतना पढ़ बस। लेते। जो हाँ, पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चंद्रमा के समान निर्मल, ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण कर। चारित्र कैसा? अतिचार रहित, और कैसा? चंद्रमा के समान निर्मल। ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक, जो अमुक लोग को एक वस्तु ध्यान थी सांभळ, હું બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત કહું છું। અમુક લોકો એવી એક્સપેક્ટેશન મનમાં રાખે, બધા સાંભળી લેજો ધ્યાનથી, कि કોક દિવસ એવો આવશે કે અમને વિશ્વથી વિરક્તિ થઈ જશે, અમે રાતને જ ખાવાનું છોડી દઈશું, ભોજન કરવાનું આમ સહેજ થઈ જશે। भाई તમે સમજો, कोई भी प्रतिज्ञा शुरुआत में सहज नहीं होती, अभ्यास करते करते वो सहज ही सहज हो जाती। ये बड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग नैरेटिव सेट हो गया है कि सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कोई दिन ऐसा आएगा कि हमारा ये सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, और वो ना दिन आता है ना तुम सुधरते। कोई भी चीज सहज कब होगी? आज तक ना की हो और अचानक करो तो सहज कैसे हो जाएगी? मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि आप अगर दिन भर खा 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 करते रहते हो, बराबर ना, एक दिन आप रात को नहीं खाओगे तो पेट तो बूम पड़ेगा ही ना, क्या हुआ मालिक, जिंदा हो कि मर गए? खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। वो सिग्नल देगा बार बार, कभी आंतें फफड़ेंगी आपकी, कभी गैस बनेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। वो क्या कर रहा है? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है ना, उसे मशीन है। वो कहता है मेरे खाने का टाइम है, आज मेरी सुध ही नहीं ले रहे, तो मुझे को दे ही नहीं रहे, तो कहते लाओ लाओ लाओ। और कोई तो है नहीं उसकी भाषा, तो अलग अलग भाषा, कभी भूख के रूप में आती, कभी किसी रूप में आती। अब आप ये सोचो कि वो पहले दिन से डायट अमरा बन के बैठ जाए एकदम, तो पेट खराब हो तभी ऐसा हो। मैं सिंपल भाषा, अगर आपका पेट अच्छा है तो खाने के टाइम आपको भूख लगेगी लगेगी। आप सोचो कि सहज हो जाए कि भूख ही ना लगे, तो सहज तो बीमारी में ऐसा हो, तो भूख भी लगेगी तो क्या करें? यही तुम समझा रहे। भूख लगना शरीर का गुण धर्म। क्या बोला? इसमें कोई बुराई नहीं है, ये केवल ये बता रहा है कि ये मशीन बराबर काम कर रही, नथिंग एल्स। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना आत्मा का धर्म। वो अपना धर्म कर रहा है, तुम अपना धर्म करो। उसे कुछ और आता नहीं है तो भूख लगी भूख लगी भूख लगी। तुम्हें तो समय सार भी आता है, तत्वार सूत्र भी आता है, बोले सब आता है पंडित जी, लेकिन भूखे पेट कुछ नहीं आता है। सब आता है, पेट भर दो, बढ़िया बेहतरीन 2 फरसान 2 मिष्ठान 10 प्रकार के भोजन दे दो, फिर आपको जो सुनना सुनाना बात तब करे, पहले आवाज। सही बात है, सब आता है, लेकिन कब आता है? पेट भरने के बाद आता है। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया? नशे में हर आदमी ज्ञान की बातें करने लगता है, समझे कि नहीं समझे? ऐसे नशेड़ी वृत्ति से बचना, ज्ञान हाजिर करके ज्ञान की बात, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ज्ञान है आपके पास तो ज्ञान को बोलो, भाई शरीर अपना काम कर रहा है, मैं इसको देखूंगा जानूंगा। क्या कठिन नहीं है, सरल है। समझे कि नहीं समझे?
तो ऐसे सब में तो जो ये मानते हैं, एक छोटे से छोटा नियम भी भाई साहब ऐसा नहीं होता कि सहज हो जाए। कांदे बटाके का त्याग का भी अगर आपने नियम लिया है तो उसके लिए भी आपको 50 बार प्रयत्न पूर्वक व्यवस्था बनानी पड़ती। अगर आपके पुण्य का उदय प्रबल नहीं है तो आपका एक खासा टाइम उस व्यवस्था को मैनेज करने में जाएगा। तो क्या करना, नहीं करना क्या? अरे भाई ये पहले प्रयत्न पूर्वक होता है और करते करते अपने आप सहज हो जाता है। जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो पहले ही दिन परफेक्ट हो? कोई है ऐसा काम? पहले दिन माताओं बहनों से परफेक्ट रोटी बनी थी, पहले दिन आपने परफेक्ट साइकिल चलाई थी, पहले दिन आपने परफेक्ट कार चला ली थी, पहले दिन ऐसा कौन सा काम था जो परफेक्ट? रोने के अलावा वो पैदा ही होते एकदम परफेक्शन के साथ में। रोने के अलावा बाकी जो भी काम किए उन सब में परफेक्शन आने में टाइम लगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? बस यही बात है। अगर आज भी आप रोगे तो बिना मेहनत के परफेक्टली कर लोगे, क्योंकि उसकी जन्म से आदत है। है जन्म से एक ही काम तो कि बिना एफर्ट के परफेक्शन कहाँ पे आई है? रोने में। आज भी जो धर्म करवाने को तुरंत रोना चालू, हम कैसे कर ले, हमारे यहाँ पे इतनी तकलीफ है, वो हाँ अब रोना, वो तो परफेक्ट जन्म से ही पर क्या नशा की बात रो। तो रोने का काम ऐसा है जो बिना एफर्ट के होता है, एकदम परफेक्शन के साथ। उसके अलावा आप छोटा भी कदम बढ़ाओगे ना तो आपको मेहनत लगेगी। तो धर्म के मार्ग पर चलना मतलब आपको क्या लगता है पहले दिन से पैर संभल जाएंगे? पहले दिन दौड़ने लगोगे, पहले दिन सहज हो जाएगा? ऐसा मार्ग नहीं है। जो चीज अनभ्यास से कठिन लगती है वही चीज अभ्यास से सरल लगती है। समझ में आया क्या बोला? जो चीज अनभ्यास से कठिन लगती थी वही चीज अभ्यास से अब कैसी लगने लगती है? सरल लगने लगती है। इसीलिए अगर आपको आज भी चरित्र धारण करने में कोई तकलीफ हो रही है, मैं देखता हूँ 60, 65 साल, 80 साल की, 70 साल की माताएं बहनें हो गई, घर में रहती हैं तो भी रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, तो भी होटल का खाना नहीं छूट रहा, अभक्ष भक्षण नहीं छूट रहा, विकता नहीं छूट रही, संसार का मोह नहीं छूट रहा। तो भाई थोड़ा सा अभ्यास करो। आप ये मत समझो कि अपने आप से, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ये करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें करोगे तो आगे कर पाओगे ना। एक बहुत सुंदर 2 लाइनें किसी ने लिखी थी, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। समझ में कि पहले घुटना ना ढीचड़ ऊपर चालता भाकरिया बढ़ता 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 शू થઈ જાય? ઉભો થઈ જાય માણસ, દોડવા લાગે। એમ જ छोटी छोटी चीजें अपन अपने जीवन में लाएंगे तो धीरे एक बहुत बड़ा रूप उनका बन जाए। शुरुआत छोटे से करो, बराबर। हाँ तो देखो यहाँ पे बात आई अपनी कि चारित्र अति से निर्मल प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं उन चरम शरीरियों को कंपलसरी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने अपने जीवन में ज्ञान श्रद्धान पूर्वक एक भी नियम धारण किया, वो अल्प काल में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता ही होता है। बराबर। चलो आगे पढ़ो। और भी जो चतुर मुनि इस चारित्र चार से सुशोभित होते हैं वे तीनों लोक के सुखों को भोगकर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। बहुत बढ़िया कि जो ये प्रमाणे चरित्रना आचार ने पालन करे એ મુનિરાજ सांसारिक સુખોને પ્રાપ્ત કરીને ક્રમેથી ક્યાં જાય? મોક્ષમાં વિરાજમાન થઈ જાય છે। એટલે કહેવાનું મતલબ એ છે કે સંસારી સુખ પછી એ મોક્ષ સુખનો અધિકારી બની જ જાય છે। ઠીક છે। હવે જો एक बात आई कि तीर्थ स्नान में संवर मानने से क्या हानि होती? तीर्थ स्नान मतलब पता है?
तीर्थ स्नान मतलब क्या होता है? तीर्थ स्नान से होते हैं, अति से बोलो बोलो। कुछ अति से होते हैं। ना ना ना, तीर्थ स्नान એટલે गंगा जी में जाके डुबकी लगा के आ गए, ऐसा नहीं। ऐसे ही है। तीर्थ मतलब नदियां, सरोवर, तालाब, और उनमें जो स्नान करने पर एक मान्यता ऐसी है जो ये कहती है कि जिंदगी भर पाप करो और लास्ट में गंगा में डुबकी लगा दो। गुजरात में प्रसिद्ध है ना कहावत, कई सूरत नो जमण अने काशी नो मरण, કાશીનું है ना, कहेवाय ने सूरत नो जमण अने काशी नो मरण। એટલે મરણ. તમે ત્યાં જાઓ, ડૂબકી લગાઈને મરો તો સીધા વૈકુંઠ પહોંચો, है चले। समझा कि नहीं समझा? એ પ્રમાણે તો અમુક લોકો એવા માને કે તીર્થ સ્નાન કરવાથી એટલે નદીઓમાં નાહવાથી પાપ ધૂલી જાય, એટલે મારા બધા કર્મોની સંબર નિજરા થઈ જાય। આપણામાં પણ અમુક લોકો એવા છે જે નદીઓમાં નાહવાની વાત તો નહીં કે, પણ પાલિતાનામાં નવાણું કરવાની વાત કે, શિખરજીમાં દર્શન કરવાની વાત કે, આવી વાત કે। એટલે દ્રવ્ય તીર્થોની મહિમા બતાવે, ભાવ તીર્થની મહિમા બતાવતા। समझ में आवे छे? भाव तीर्थ महिमाशाली कि द्रव्य तीर्थ महिमाशाली? बोलो भाव, लॉजिक तो आप एमने एम थोड़ी मानी लो, प्रूव करो कि भाव तीर्थ महिमाशाली। अरे कहीं तो कहो। द्रव्य तीर्थ, हाँ बोलो, पहला कौन बने, द्रव्य तीर्थ की भाव तीर्थ? भाव तीर्थ। भाव तीर्थ पहला बने, भाव तीर्थ ने लीधे द्रव्य तीर्थ बने। समझा? आजे नेमिनाथ भगवान अंदर में सिद्ध पद ने पामी चुक्या, अरंत पद ने पामी लीधु, अरंत पद ने पामी लीधु तो गिरनारी नी कीमत छे। बराबर ख्याल में आवे? ये जे भीम, युधिष्ठिर अने अर्जुन एमने सिद्ध पद त्यांथी पाम्यो तो पालिताणानी कीमत छे। भाव तीर्थ की कीमत, क्योंकि भाव तीर्थ के कारण द्रव्य तीर्थ बनते, द्रव्य तीर्थ से भाव तीर्थ नहीं बनते। पालिताना में भी नया चालू हो, पता, वो शत्रुंजय नदी की आरती करते, और बड़े जैसे गंगा की आरती पॉपुलर हो रही ना, वैसे अब वहां पालिताना में शत्रुंजय की आरती पॉपुलर हो रही। कितनी कितनी बीमारी अडॉप्ट करोगे? अपने यहाँ है कहाँ बात कि नदी महत्वपूर्ण है, कि पहाड़ महत्वपूर्ण है, कि पेड़ महत्वपूर्ण है, कि पशु महत्वपूर्ण? ये सब लोग मूर्ता है, और लाख लाख 2-2 लाख का तो वो घी बुलाता है वहां पे रोज दी आरती। जैन धर्म का सत्यानाश करने पर तुले हुए, उन्हें लगा कि क्या है अट्रैक्शन, लोगों को किस में आएगा? बोले गंगा आरती में अट्रैक्शन है, बराबर, तो अपने यहाँ पे अपन किसकी आरती करेंगे? शत्रुंजय की। अरे भाई कहाँ कहाँ जैन धर्म रहा उस, और लोगों को मजा भी आएगा, कुरीतियां ज्यादा जल्दी फैल जाती, क्योंकि उनका मन फेमिलियर होता है उस चीज के साथ, अडॉप्ट करने के लिए तैयार होता है। वो मन में प्रतीक्षा ही कर रहा होता है कि यार गंगा आरती तो पॉपुलर हो ही गई, अपने यहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या 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 कहते हैं वो, क्या कहेंगे, क्या लुक आएगा, क्या सीन होगा, रात का अंधेरा, टिमटिमाते दिए, और बेस्ट म्यूजिक, और फ्लूट, और पियानो ना, क्या मजा आता है। वाह वाह वाह, सेनु मजा છે પેલા। એટલે એ બધા પછી ફોટા સારા આવે, અંધારામાં ફોટા પાડી સારા આવે। આ તારી ફોટાના ચક્કરમાં કરમની ફોટામાં આવી જશે, ખોટા ખોટા ફોટાના ચક્કરમાં પડ્યો છે। જગતમાં રમણીય શોધે એ તો મૂળતા છે, પણ મોક્ષમાં પણ રમણ જ કરવા માંગે છે। રમત શું જે છે એને મોક્ષમાં ભાઈ, રમતા રમતા કર્મ બંધાય।
રમતા રમતા કર્મથી મુક્ત ના થવાય. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? કે રમતા રમતા તમે કર્મથી બંધાઈ શકશો, પણ ભાઈ એ રમતા રમતા તમે કર્મોથી મુક્ત નહીં થઈ શકશો. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? આ વસ્તુ સમજી લે. તો તીર્થ સ્નાનની વાત કરીએ તો જો તીર્થ સ્નાનથી આપણે મોક્ષ માનીએ, વાંચો પ્રજ્ઞાનંદ, બધા પોઈન્ટ વાંચી લો એક સાથે. यदि ऊपर यदि तीर्थ स्नान से संवर होता तो निरंतर तीर्थ जल में डूबी रहने वाली मछली आदि के भी मोक्ष अति सुलभ हो जाएंगे और रागी देशी मोही जीवों को भी मात्र तीर्थ स्थान से मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। अतः गुप्ती आदि के सिवाय अन्य कारणों से संवर नहीं हो सकता है। બરાબર. એટલે તીર્થ સ્નાન કરવાથી મુક્તિ મળી જાય તો જે મછલીઓ નદીના જળમાં ડૂબી રહે છે એ તો તરત જ મોક્ષ જતી રહે. આવું થાય નહીં થાય. પછી રાખી જિંદગી પાપ કરો અને પછી તીર્થમાં નાઓ અને છૂટા, આવું થાય નહીં થાય. એટલા માટે અહીંયા ક્લિયર કર્યો છે કે બહારની વસ્તુઓથી કઈ મોક્ષ મળતો નથી. મોક્ષ મળે છે તો માત્ર ગુપ્તી સમિતિ આદિ વસ્તુઓથી જ મળે. બહારના કારણોથી મોક્ષ થતો નથી. આ વસ્તુ અહીંયા કહેવામાં અને સિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ પ્રસંગ એટલા માટે પ્રસિદ્ધ છે કે હજી લોકો 4 ધામ કરવા જાય. 4 ગતિ મટાડવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, 4 ધામ કરવામાં લોકોનો ઇન્ટરેસ્ટ છે. 5 વાર નમાજ પડવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, પંચમ ભાવનો અનુભવ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે શું કહીએ, ધર્મની સમજ લોકોની બહુ વ્યર્થ. ચૈતન્ય પ્રભુ આત્મા એ અનંત ધર્મમય છે એની ભાન એને થતો નથી, અને એને સિવાય બધી જગ્યાનો ભાન અને માન થાય છે. બરાબર સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આજે એટલા લોકો બહાર બેસેલા છે, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં છે. ઘણી વખત એને દ્રવ્ય ક્ષેત્રોની મહિમા આવતી હશે. અરે રે લંડનમાં શિખરજી નહીં, નેરોબીમાં ગિરનારજી નહીં, આ નથી, તો કદાચ એની મહિમા આવતી હશે. ભાઈ તમે ખેદ ના કરો. સર્વ તીર્થોનો તીર્થ ચૈતન્ય ભગવાન આત્મા તમારી પાસે હંમેશા છે. ઉદય બને તો આપણે સંયોગ બને તો તીર્થોમાં જવાનું, એનો નિષેધ નથી, પણ તીર્થોમાં જઈને પાછા આવી રીતે નહીં આવવાનું. તીર્થોમાં જઈને દ્રષ્ટિ કર્મોથી અને સંયોગથી પાછા ફેરવવા. આવી રીતે સાચો સંયમ આત્મામાં જમીને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એવી મંગલ ભાવના સાથે વિરમીએ છીએ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.